Mr. Rahul Pandey sir, faculty members and dear students. Students Innovation Council of ITS Engineering College and initiative of Ministry of Education Innovation Cell organizes expert talk on creativity and innovation as key for developed nation to celebrate World Creativity and Innovation Day. You know, we celebrate World Creativity and Innovation Day. You are having any idea about this? Okay. So, hello. We celebrate World Creativity and Innovation Day, and today we are organizing expert talk on creativity and innovation as key for developed nation. Okay? And today our speaker is Mr. Rahul Pandey sir. Mr. Rahul Pandey is CEO and founder of Pulpy Dye Private Limited, and he is having a rich experience in the field of innovation, incubation, startup, entrepreneurship. He is also a mentor in Indira Gandhi Delhi Technological University Incubation Center, Delhi. Okay, and he is having a rich experience in mentoring and organizing different events. With this brief introduction, may I invite our expert, Mr. Rahul Pandey sir, to kindly conduct the session. And please give a big round of applause for today's speaker, Mr. Rahul Pandey sir. Please sir. हेलो, आवाज आ रही है? कोई नहीं ना माइक की जरूरत है? ओके. So good morning everyone. My name is Rahul. I'll use Hindi, English, and language I know is Bengali. Last session में आप लोग में से कोई था यहाँ पर? When I was here? This is the second time I think I'm here. So I think third one. Thank you very much for the invite. Next 1 hour 15 minutes already we are running late. Sorry for this last minute glitches. Topic given is obviously innovation and creativity as we see in light of a developed nation, right? Where are we progressing? What can be done? What innovation and creativity, how does it play a key role in making a nation a developed nation, right? I think usse pe karenge. So there are few. This slide is more of a theoretical in terms of I've tried to capture few data points from here and there so that you guys understand कि हो क्या रहा है और किस areas में we can kind of take a leap forward ताकि as the government is planning or everybody or all of us have a vision that India should become a developed nation, right? किस areas में कहाँ हम focus कर सकते हैं so that innovation creativity can help in solving issues which are pertaining to general life of individuals and what can be done to what entrepreneurial mindset can do to achieve it, right? उस पर हम focus करेंगे. So I'll try to share. I will mention about the PPT for sure, but अपने examples जो हैं और around the world globe के जो examples हैं उनको लेते हुए I will try to conduct this session for next 1 hour. Any questions also I would expect all of you to participate. मैं यहाँ monologue की तरह नहीं आता हूँ कि मैं एक expert session लिख देते हैं, but I don't prefer it to call it as an expert session. I would prefer more of a dialogue kind of a thing. ठीक है? मैं as a facilitator हूँ, as a dialogue हूँ, तो if you have any concerns, queries, you can anytime raise your hand and I'll be happy to assist answer your queries. So अभी मैंने I started off with asking you, सबको मैंने बोला एक पेज अपने हाथ में रख लो, राइट? पेन का कोई काम नहीं है. If you really want to take a note, you can take a note. But सबके हाथ में पेज होना चाहिए. सबके हाथ में है एक पेज, छोटा बड़ा जो भी है? Okay? So let's start with this. सबको एक एरोप्लेन बनाना है उस पेपर से. Please make an aeroplane. एरोप्लेन उस पेपर से बनाना है. सबको एक एरोप्लेन बनाना है उस पेपर से. एरोप्लेन बनाने में तुम आए हो क्लास में लोग आते हुए
बुलाते हो ना, मैसेजेस देते हो एक दूसरे को, बचपन में करते चले गए हो स्कूल से हो रहे होंगे। जल्दी क्विकली 1 मिनट के अंदर, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसका, इसको प्रैक्टिस है। एरोप्लेन किस किस का बन गया? ओके, वेरी गुड। और किसने? आपने नहीं बनाया? दोनों ने मिलकर बनाया, टीम वर्क। ओके, और कोई दिखाना किस किस के एरोप्लेन कैसे कैसे बने? किसका उड़ रहा है? अच्छा, पुराना मत। हाँ जी, ओके ओके, और कुछ एरोप्लेन दिखाओ अपने प्लीज, जल्दी। लो, बीच के बच्चे, हाँ बीच में बैठे, इधर इधर इधर, उठाने की जरूरत नहीं है। ओके, हो गया? Everybody has made an aeroplane out of the paper which was shared or which was with you. हो गया ना सबका? Now based on this slide, based on this, tell me how many of you think are creative? How many of you present here do you think that you guys are creative enough? बताओ, एरोप्लेन जो बनाया है उसके हिसाब से आपको लगता है कि आप लोग क्रिएटिव हैं? हाँ जी, है? ओके, और किस किस को लगता है यू गाइस आर नॉट क्रिएटिव, मच क्रिएटिव? कैसे, क्यों? व्हाई डू यू थिंक सो? ओके, गिव मी 1 मिनट। किस किस को लगता है क्रिएटिव नहीं हो आप लोग? हाँ प्लीज रेज योर हैंड, ऑनेस्टली दोनों डिस्कशन में आएंगे इसको, प्लीज रेज योर हैंड। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक यू गाइस आर नॉट क्रिएटिव? व्हाई डू यू थिंक सो? हाँ बोलो। I am always copied and learned from that. I never created anything before. You are always? In case of aeroplane, I've always seen it from anyone and then created it. My first time. So you copied it? Yeah, I Do copied you think it is an aeroplane? No, sir, it's a इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, जल्दी लेके आओ। Okay, how many? Anybody else who said who is not creative? Quickly. किसने और बताया? यहाँ पर और एक दो लोगों ने हाथ खड़े किए थे। Who said you guys are not creative? Is it an aeroplane? नहीं? Is it an aeroplane? She made this. Is it an aeroplane? Does it look like an aeroplane? किसने सबसे अच्छा एरोप्लेन बनाया यहाँ पर? पकड़ो इसको। Somebody think who is a creative and made an amazing aeroplane? इसको उड़ा के दिखाओ भैया साइड में। आ जाओ, आ जाओ, आप आ जाओ। Quick, 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 make it fast. अभी उड़ रहा है नहीं उड़ रहा वाला बात है। इधर आओ, आ जाओ उधर। Does it? Is it an aeroplane? Is she creative? Okay, next. Is this an aeroplane? आप में से किस किस का एरोप्लेन इस तरीके का दिखता है? हाथ खड़े करो, अच्छे से खड़े करो हाथ। इस तरीके का मतलब हाँ, एक एरोप्लेन जैसा दिखता है। प्लीज रेज योर हैंड्स, मैं चिल्ला रहा हूं यहाँ पर। हाँ, और आपने बनाया नहीं कुछ? हाँ तो बताओ ना, एरोप्लेन दिख रहा है ना कुछ? हाँ वेरी गुड। और कोई ऐसा दिखता है एरोप्लेन? ओके वेरी गुड, पकड़ो इसको। आपका एरोप्लेन दिखाना, किसका एरोप्लेन ऐसा दिखता है? It's aeroplane in it, right? I would say, so that's the problem. The problem lies in our head. हम बचपन में kids are the most innovative और creative people. जब हम बचपन में छोटे होते हैं ना, तो हम कुछ भी करने को रेडी रहते हैं और कुछ भी कर देते हैं और बोलते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है? और कुछ करने की कोशिश करते हैं। वो आलतू फालतू जैसा भी होता है उसको कोई nobody judges. Here everybody is judging. क्या जज कर रहे हैं कि दिस इज नॉट एन एरोप्लेन? मैं बोल रहा हूँ भाई मेरे एरोप्लेन ऐसा दिखता है।
Do you think this is the only type of weapon which can be built in this world? हो सकता है, आज के पे है, but creativity can be anything, right? So she is also creative. That उसके एरोप्लेन अगर ऐसा नहीं दिखता है, doesn't mean that उसने एरोप्लेन नहीं बनाया. The creativity की प्रॉब्लम क्या? So that you guys are not creative. Creativity, everyone is in this room is creative in some form or the other. हाँ जी. My student is saying that this is my creativity. That means I have changed the model or the design. ठीक है, that's good. Yes. Absolutely, it's good. वो उसने एक दूसरे तरीके से बनाने की कोशिश करी. That's his creativity. So that doesn't mean that आप लोग अगर आपसे पूछे creativity, creative head है कि नहीं आपके दिमाग के अंदर, आपके पास, you should not say it's no. ऐसा नहीं है. Somewhere or the other there are hidden aspects of creativity in all the individuals sitting in the class, and each and every individual, चाहे मैडम हो, सर हो, चाहे कोई भी हो. ठीक है? Next. So if we talk about next, please, content पे क्या हो सकता है? So let's break down three things, three aspects which leads to entrepreneurship. Number one, it starts with a creative head, creative brain. Second, it goes to innovation. उसके बीच में भी बहुत सारी चीजें होती है, but we will not talk about that. I'm covering a major aspect of it. Second point is innovation. And when you have an innovation, you convert that idea into some form of a business venture, which leads to entrepreneurship, right? हम इसके डिटेल्स में ऐसे ज्यादा नहीं आएंगे. Now let me ask you. हम क्रिएटिविटी के बारे में बात कर रहे हैं और इनोवेशन के बारे में बात कर रहे हैं. इनोवेशन इज व्हाट? हाँ बोलो. Innovation is doing something better in a smarter way. Okay, next. Innovation, yes. Innovation is something that the product is existing and we have to develop our things so it can be मतलब कोई भी product exist कर रहा है उसको एक innovative way उसको बनाना. Existing product. So what she is trying to say कि कोई existing product है, maybe उसमें से छोटा भी अगर changes अगर कर सकते हैं to make it better, that is also innovation. Anything else? Innovation पीछे से. Innovation क्या है? हाँ जी. वो गैंग जो बैठा है, गैंग ऑफ आइडियस, वैसे कुछ तो नहीं है पर कुछ भी. इनोवेशन क्या होता है? हाँ बोलो बोलो. तो लड़कियां बाजी मार रही हैं, आप बोलो. नहीं पीछे से. इनोवेशन. हाँ. इनोवेशन तब होता है जब हम क्रिएटिव चीज को एक यूजफुल चीज में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे कि हम एक चेंज ला सकते हैं. Very good. Good definition. She's so creative right now, right? So if you have a creative idea, creative thought, if you can transform that creative thought into a wonderful product or a service, which is useful to an end consumer or human being in general, you can define it as an innovation. Now, innovation can be a creation of a new product or a service. Innovation can be a change in, as she mentioned, innovation can be if you are trying to make a small change in a delta change in a existing product or a service. उसको भी innovation बोलेंगे, right? So creativity से शुरू होता है. Now, if you look at examples, I was mentioning if you can take some examples. So if you look at examples, entrepreneurship का और innovation का, what kind of names India से और India के बाहर comes to your head? किस तरीके के नाम दिमाग में आते हैं? Innovative minds. और पीछे मत चले जाना, मतलब इन्वेंशन के आइंस्टीन और न्यूटन के जमाने की बात नहीं कर रहा हूँ, रिसेंट एग्जांपल्स की बात कर रहा हूँ. इंडिया में इनोवेटिव आइडियाज जो मार्केट में आए हैं, हम लोग सब लोग यूज करते हैं डेली बेसिस पे. यूपीआई, हु क्रिएटेड दिस? अश्विनी ग्रोवर क्रिएटेड. नहीं, अश्विनी ग्रोवर ने क्रिएटेड. हाँ जी. यूपीआई इट्स अ सिस्टम इंटरफेस फ्रॉम द गवर्नमेंट, एनपीसीआई. और कोई? अश्विनी ग्रोवर. चलो ठीक है. और एग्जांपल दो कोई इंडिया से. हाँ जी. इनोवेटिव माइंड्स एंटरप्रेन्योरशिप में जो आगे बढ़े हैं. हाँ जी. रितेश अग्रवाल. कौन है वो? कौन है? अलग पांडे. यस. रितेश अग्रवाल. बताओ. फाउंडर. बोलो. ओयो क्या करता है? व्हाई डू यू थिंक ओयो इज अ $1 billion कंपनी राइट नाउ?
तेज बोलो हाँ रूम प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ओयो नो इट्स मोर ऑफ अ होटल सर्विसेज व्हिच ओयो प्रोवाइड्स राइट क्या किया था वेयर डज द नीड कम फ्रॉम जरूरत कहां से निकल के आती है सर जब भी कोई दूसरे स्टेट में जैसे विजिटिंग पर उसके इंटरव्यूज वगैरह देखे हैं सुने आपने कभी उसके इंटरव्यूज रितेश क्या देखे हैं सुने हैं कभी ठीक है आप बताओ जो अपनी सोच से बताओ सर जैसे कि कोई दूसरे प्लेस पे ट्रैवलिंग के लिए जाता है या विजिटिंग पर्पज के लिए जाता है तो स्किल के लिए जरूरत पड़ती है राइट सो वेयर व्हाट डिड ही क्रिएट उसने क्या क्रिएट किया ओयो में उसने होटल्स क्रिएट किए देन व्हाट डिड ही क्रिएट प्राइस पे मिनिमम प्राइस पे वो accommodation सो व्हाट डिड ही क्रिएट उसने बनाया क्या उसने क्या इनोवेशन किया it's a normal software application or a mobile application which he has created right did he started out with creating a mobile application क्या उसने सबसे पहले एक खासू मोबाइल एप्लीकेशन बना दी थी क्या बनाया होगा उसने एक छोटा सा बीटा वर्जन कुछ बनाया हुआ है आपका छोटा सा उसने टेस्टिंग करी होगी मार्केट में एंड देन ही रियलाइज क्या है देयर इज अ नीड पीपल आर यूजिंग इट नाउ लेट्स क्रिएट इट a better application and promote it in the market and create a business out of it right जो आपके दिमाग में आता है बहुत इंटरेस्टिंग आइडियाज लेके आए हैं और $1 बिलियन ऑफ मतलब अरबपति खरबपति लोग हैं हाँ एलन मस्क आगे आपका एग्जाम्पल सर एलन मस्क और हाँ एग्जाम्पल एलन मस्क ने क्या किया जल्दी आओ टाइम नहीं है एलन मस्क ने क्या किया मेटा बाय फेसबुक सर उसने इलेक्ट्रिक ईवी का इनोवेशन ओके कहाँ से शुरू किया कहाँ से कौन से कंट्री से स्टोरी शुरू की यूएस सिंपल है यूएस सो व्हाट ही क्रिएटेड इलेक्ट्रिक ईवी और ईवी कैसी इंडिया से ईवी बनाई उसने आपने देखी उसकी ईवी मतलब टेस्ला जो एक लॉन्च किया वो देखिए ठीक है ना और वीडियोस वगैरह आपने देखी होंगी ओके सो और क्या क्या लेटेस्ट इन्वेंशंस का क्या वेयर ऑल ही इज काइंड ऑफ बियॉन्ड द लिमिट्स इज ट्राइंग टू थिंक क्या क्या है SpaceX का उसका लगा सी ही डिडंट स्टार्टेड ऑफ विद SpaceX मे बी शायद उसका पैसा नहीं था उतना बट देन आल्सो ही इज डूइंग इट राइट और क्या क्या उसने हाइपरलूप राइट ठीक है गुड एग्जांपल एलन मस्क के एग्जांपल उन्होंने लिया सो ही स्टार्टेड ऑफ विद क्रिएटिंग ईवी व्हीकल्स आज के दिन आप चलो इंडिया में भी हम ईवी की बात कर रहे हैं लेकिन काइंड ऑफ मार्केट यू वाज कैटरिंग टू यूएस मार्केट वहां पर ईवी व्हीकल्स स्टार्टिंग जो किसने करी एलन मस्क ने करी सो हाउ डिड ही अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट एंड द नीड हाउ डिड ही अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट एंड द नीड ऑफ एन ईवी व्हीकल कैसे उसको समझ में आया होगा and why was he passionate about what was he passionate about किसी को पता है हाँ so he was passionate about two things he was passionate about customers and he was passionate about environment बीच में अगर तुमने कहीं उसके इंटरव्यूज वगैरह देखे होंगे so he keeps iterating about these two things and when he started out with this he mentions कि वो 100 घंटे लगातार काम करता था because he was so much passionate enthusiastic about it so creativity आपको पुश करती है अपने विजन को एग्जीक्यूट करने के लिए एंड वर्किंग फॉर लॉन्गिंग आवर्स राइट तो ऐसे इंडिया में और भी एग्जाम्पल लेंगे इंडिया से हाँ जी जोमैटो कौन है उसका फाउंडर हाँ दीपेंद्र गोयल क्या किया जोमैटो एक एप्लीकेशन तैयार किया हाँ एक इंटरेस्टिंग चीज वो निकल के आती है whenever I talk about innovation and entrepreneurship लोगों को लगता है कि दुनिया की सारी समस्याएं एक एप्लीकेशन में सॉल्व हो जाएगी यंग माइंड सिटिंग ओवर हियर आप लोगों को कुछ भी लगता है कि मैं सब कुछ की एप्लीकेशन तैयार करता हूं तो ऐसा मत करना कभी भी राइट देयर आर लॉट ऑफ ब्रिक एंड मोटर रिलेटेड ट्रेडिशनल तरीके से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हम सॉल्व कर सकते हैं एप्लीकेशन यूजर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इज वन पार्ट ऑफ इट राइट तो दीपेंद्र गोयल ने क्या किया फूड डिलीवरी वेयर डिड इट स्टार्ट फ्रॉम सबसे पहले क्या था जोमैटो पता है क्या था कहा था सबसे पहले जोमैटो स्टार्टिंग जब हुई थी तो क्या था वो तो आज के डेट में इट्स अ यूनिकॉर्न एंड इट्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी राइट बट वो स्टार्टिंग कैसे किया था दीपेंद्र गोयल ने दीपेंद्र ने स्टार्ट कैसे किया था he just it was a Google for restaurants
समझ रहे हो? वहां पर क्या कर सकते थे? रेस्टोरेंट सर्विसेज और रेस्टोरेंट जो थे अपने आप को लिस्ट कर सकते थे. बट देखा दिस माइट नॉट बी वर्किंग, इट्स नॉट अ फिजिबल मॉडल बिकॉज रेवेन्यू जनरेशन नहीं हो रहा है. सो ही ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसलेटेड दैट मॉडल, पिवटिंग बोलते हैं उसको, चेंजेस करते हैं, pivoted into a different model altogether, जहां पर he created an application and started enlisting the restaurants and cafes so that they can sell their products to the end user, right? So interesting example, creativity and innovation के आपके आसपास ही मिल जाएंगे. और आज की in today's world when information is so much accessible, I think you should always be referring to this so that you know you are always enthusiastic. किसी मेरे ऐसे लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को यहाँ पर आके बताने की. But फिर भी we are doing that interaction. Next. So creativity, innovation, and that leads to what? Entrepreneurship. Entrepreneurship क्या है? Quickly हम लोग discuss कर लेंगे. Small businesses. So innovation को when you have come up with an interesting product or a service, how do you take it to the market for the end user के usage के लिए या consumption के लिए? आप उससे एक business model तैयार करो so that you can suffice the need of the end user. Number one, you can also make money for yourself and in turn generate wealth. और wealth generation क्या करता है? Wealth generation क्या करता है? One of the most big indicators of a developed nation. कि मैं वहां पर आना चाह रहा था developed nation. क्यों? One of the most or biggest indicators of a developed nation. क्या? People should be rich. People should be wealthy. Economic stability होना चाहिए और people should be wealthy, right? So entrepreneurship plays a very pivotal role in a nation's journey towards becoming a developed nation. ये दिमाग में बिठा के रखो, right? Next. Right? So there are few indicators. थोड़ा लेक्चर वाली यहाँ शुरू होगी. There are few indicators which I will be talking about. और ये जरूरी है आप लोगों को समझना because आप लोग किस एरिया से पीछे? आप लोग किस एरिया से? पीछे. हाँ. So there are few indicators of a developed nation. What are those indicators? Number one, economic indicators, human development index, social factors, political stability and government, standard of living, technological advancement, environmental stability. Right? Next. आप लोगों ने इसका नाम सुना है? SDGs सुना है? SDGs क्या होता है? हाँ जी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसने डिसाइड किए? कहां से आए ये? UN से, यूनाइटेड नेशन से. Now United Nations talks about there are 17 SDGs which they have defined. Now for any nation, if they are talking about becoming a developed nation, there has to be parameters that for better livelihood of human beings. These are the 17 sustainable development goals which each nation should focus on. Now, as I mentioned, that innovation and entrepreneurship plays a key role. आप इसमें से किसी भी एक गोल को उठा लेंगे ना, आपको इंडिया में उस लेवल पर उस चीज से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा. नाउ फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक वन एग्जांपल, क्वालिटी एजुकेशन. क्वालिटी एजुकेशन, SDGs में मेंशन है कि क्वालिटी एजुकेशन और एजुकेशन फॉर ऑल शुड बी द राइट. जैसे इंडिया में है एजुकेशन फॉर ऑल, बट क्वालिटी एजुकेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, राइट? नाउ डू यू थिंक all the problems which are related to quality education for college goers or even for the school kids are solved? सब कुछ सारी समस्याएं क्वालिटी एजुकेशन लेके सॉल्व हो चुकी है. आप इंडिया की बात करिए, किस तरीके के प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं, कोई बताएगा? Quality education is related. If you want to become a developed nation, it's very important that quality education should be accessible to all, whether at the graduate level, PG level, PhD level, or at a school level, right? Now, do you think at all levels quality education is being imparted? हो रहा है ये deliver? क्या loopholes हैं? बताओ, कोई बताओ. Quality education नहीं मिल रही है, क्या क्या प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है? Any problems related to quality education? कुछ समझ में नहीं आ रहा है? हाँ बताओ, बोलो, बी वोकल. आवाज तो बड़ी दबाते हैं बैठ के. हाँ. Writing that syllabus
जैसे समझाओ। सर जैसे कोई भी एक बोर्ड का एग्जाम्पल है, तो जैसे आईसीएसई बोर्ड का, जब हम when I pass test, तो उसका फिजिक्स के सिलेबस 12 चैप्टर और इम्पोर्टेंट चैप्टर, लेकिन आज के डेट में फिजिक्स के जो चैप्टर 7 कर दिए गए और बहुत इजी तो ये प्रॉब्लम है तुमको लगती है? हाँ सर, क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल हाई हो गया, आगे चलिए वो चीज इसमें फेस कर। ओके, सो व्हाट शी हैज आइडेंटिफाइड एज अ प्रॉब्लम इज कि हम मे बी स्कूलिंग सिस्टम में 10th में या 12th में हम एजुकेशन को थोड़ा लीनिएंट कर रहे हैं। मे बी वो भी फीडबैक कहां से आया होगा? गवर्नमेंट ने अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं किसी भी तरीके से, वो फीडबैक कहां से आया होगा? स्टूडेंट से, पेरेंट्स से आया होगा, राइट? अगर हम वहां लीनियंसी दिखा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द कोर्स कंटेंट या फिर जिस तरीके की चीजें बच्चों को सिखानी है, हाउएवर द सेम इज नॉट गेटिंग रिफ्लेक्टेड एट द हायर लेवल्स। हायर लेवल्स पे क्या हो रहा है? कंपटीशन अभी भी टफर एग्जिस्ट कर रहा है, काफी हद तक, काफी हाईली कॉम्पिटिटिव है, राइट? सो हो क्या रहा है कि देयर इज अ गैप व्हिच इज एग्जिस्टिंग, सो स्टूडेंट्स आर फेसिंग challenges. Anything else which is related to quality education? Any other problem which you can identify? Existing जो आइडियाज हैं, जैसे पैचूज हो गया या और कुछ हो गया, जैसे फिजिक्स वाला हो गया, और एग्जाम्पल से एडटेक में अगर हम बात करें, एडटेक में जो कंपनीज एग्जिस्ट कर रही है वो क्यों एग्जिस्ट कर रही है? व्हाई आर दे एग्जिस्टिंग? व्हाट इज द प्रॉब्लम व्हिच दे आर ट्राइंग टू सॉल्व? किसी भी एक एग्जाम्पल लेके बताओ मेरे को। हाँ, कौन सा एग्जाम्पल दो कोई? क्या कर रहा है वो? प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ये बताओ मेरे। फिजिक्स वाला जो है ना सर, वो थियोरेटिकल के बजाय प्रैक्टिकल वे में ज्यादा समझाता है। ठीक है, तो उससे हो क्या रहा है? स्टूडेंट उस तरीके से ज्यादा मतलब उस कॉन्सेप्ट को इजीली समझ पाते हैं। मतलब वो लेक्चर देने के बदले वो किसी भी सोल्यूशन को वो प्रैक्टिकली बताते और करके बताते हैं। करेक्ट। सो पॉइंट इज दे आइडेंटिफाइड अ प्रॉब्लम and they are working on a solution in the through an application या फिर in their own coaching classes, अगर मैं बोलूँ, राइट? आई थिंक नोएडा में उनके काफी सारे इंस्टीट्यूशन से सेटअप्स उन्होंने तैयार किए हुए, राइट? और जहां पर उसने बताया कि प्रैक्टिकलिटी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? सो इसी तरीके से if you look into any of these sector, for example clean water and sanitation, मैं क्यों इन सब SDG के बारे में बात कर रहा हूँ? Because that's the very important aspect which all of us have to understand. हम बड़ी बड़ी बात करते हैं कि यहाँ से निकल के गूगल में काम कर लेंगे या फिर एक गूगल जैसी कंपनी तैयार कर लेंगे, बट सही इनोवेशन कहाँ करना है सो दैट वी बिकम अ डेवलप्ड नेशन, वो मैं बताऊंगा. सो लेट्स टॉक अबाउट क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन. नेक्स्ट गोल क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन. इंडिया को ले लो, कहाँ है तो कौन राजस्थान से, यहाँ पर कोई है राजस्थान से? नहीं है. दिल्ली से? कोई ऐसी जगह से जहां पर क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की इश्यू एग्जिस्ट करती है? कोई गांव देहात से सैनिटेशन नहीं? क्लीन एक्सेस टू क्लीन वाटर. डू यू थिंक एक्सेस टू क्लीन वाटर सबके पास है इंडिया में? प्रॉब्लम है कि नहीं है? कितनी बड़ी प्रॉब्लम है? बहुत बड़ी, राइट? इट्स अ बिग इशू, बिग चैलेंज. और ये सिर्फ इंडिया की समस्या है. अफ्रीका चले जाओ, लोगों को पानी नहीं पीने के लिए. क्या क्या किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं हैविंग नॉट हैविंग एन एक्सेस टू क्लीन वाटर? हाइजीन इश्यूज, डिजीजेस. और क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? आपको तो घर में टैप वाटर मिल जा रहा है, बिस्लेरी पानी मिल जा रहा है. वहां और रिमोट एरिया में चले जाओगे, क्या करते हैं लोग? आपने देखा विमेन स्टोर करके रखते. क्या करते हैं वो? मीलों जाती है, पानी भर के लेके आती है गर्मियों में. और क्या होता है? और किस तरीके की बाहर भी जाने की जरूरत नहीं है. दिल्ली में चले जाओ, अभी गर्मियों में क्या शुरू हो जाएगा दिल्ली में? टैंकर्स आएंगे. आर दीज सॉल्यूशंस व्हिच गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग कि टैंकर से लाना, आर दिस परमानेंट सॉल्यूशन? दीज आर ऑल टेम्पररी फिक्स पीपल आर डूइंग. बट आर वी सो हमारे ऊपर जिम्मेदारी आती है एज ए स्टूडेंट्स और यंग इनोवेटर्स दैट वी ट्राई टू फाइंड आउट परमानेंट सॉल्यूशंस फॉर दिस प्रॉब्लम्स. टेम्पररी फिक्स ढूंढने से कोई मतलब नहीं, राइट? सो हाउ डू यू फाइंड आउट परमानेंट सॉल्यूशंस? Again, you can choose a
रूट ऑफ क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उस रूट को आप चूज कर सकते हैं, राइट? सिमिलरली तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, इस तरीके के कोई भी एसडीजी उठा के देख लो, नथिंग इज परफेक्ट राइट नाउ. हर एसडीजी में it's a very easy way for all of us to start off identifying the problems. किसी भी एसडीजी में चले जाओ, कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम्स मिल जाएगी. And there is always a scope for coming up with innovative ideas to solve problems, coming up with innovative ideas and make world a better place. Right? Next. Now, मैंने वो economic indicators बताए थे. So what are those economic indicators? Why is higher GDP per capita, robust infrastructure, widespread access to goods and services to the population is one of the indicators for a developed nation, right? अब इंडिया में क्या हो रहा है? Where we stand? We are becoming world's 5th largest economy. बहुत बात हो रही है कि 5th economy हो गए हैं, अगले कुछ साल में 3rd हो जाएंगे, right? बहुत सारी चीजें हो रही है, right? गवर्नमेंट बोलती रहती है सारी चीजें. But on ground क्या हो रहा है? What's happening on the ground? This indicator is good, but where we lack, where is the scope of improvement? कि still per capita income जो है, हम कहाँ exist कर रहे हैं? 139 in overall nominal GDP ranking में, out of 193 countries. Now, why is this an important indicator? And what can you understand from this number? अगर मैं बोलूँ कि what really can help in increasing this per capita income? Per capita income अगर लोगों की इंक्रीज करनी है, हम सबकी इंक्रीज करनी है, तो क्या कर सकते हैं उसके लिए? क्या जरूरी है? जो पहले बताया मैंने, स्टार्टअप नहीं, मतलब और क्या कर सकते हैं? मेनली करना क्या है? वेल्थ जनरेट करती है. क्या करना है? वेल्थ जनरेट करनी है. और वेल्थ कहां से जनरेट होगी? वेल्थ जनरेट करने के दो ही तरीके हैं. एक इंडिविजुअल वेल्थ दो ही तरीके से जनरेट कर सकता है. वेल्थ समझते हो क्या होता है? एक होता है रिच, एक होता है वेल्दी होना. तो वेल्दी कैसे हो सकता है इंसान? हम नौकरी करके हम रिच तो हो सकते हैं. काफी लंबा रास्ता है. आप वेल्दी कैसे हो सकते हो? दो ही तरीके हैं वेल्दी होने के. कैसे? एक, either you become a businessman, जो एक एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही है. सेकेंड इज यू बिकम इन्वेस्टर्स. इन्वेस्टिंग के लिए आपको क्या चाहिए होगा? पैसा चाहिए होगा. तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? So point is, why are we talking about creativity, innovation and entrepreneurship? Because entrepreneurship paves you the way, gives you the way to solve problems which are indigenous to any nation and create wealth out of it. Once you generate wealth, you can distribute the wealth, and obviously it can help in raising the per capita income of the individuals also. Right? Next. Again, Human Development Index. क्या क्या? High life expectancy, poverty level, education level, literacy. तो अगर for example, again SDG पे आ जाए, is everybody getting access to good health? क्वेश्चन वहीं से आ जाएंगे सारे के सारे. Is everybody getting access to good health? क्या क्या इंटरवेंशन हुए? आप लोग कुछ एग्जांपल दे सकते हो? मेकिंग गुड हेल्थ एक्सेसिबल टू ऑल, किस तरीके के इंटरवेंशन हुए हैं? प्राइवेट सेक्टर में भी या पीपीपी, प्राइवेट पब्लिक मॉडल में भी, और गवर्नमेंट की तरफ से. सोचो थोड़ा, किस तरीके के ऑलरेडी इंटरवेंशन हुए हैं? हाँ जी, एक वन ऑफ द इंटरवेंशन इज व्हाट? दिल्ली गवर्नमेंट का मोहल्ला क्लिनिक. वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है वो छोड़ो, हम उसके मेरिट डिमेरिट में नहीं जाएंगे, ठीक है? बट वन ऑफ द इंटरवेंशन इज मोहल्ला क्लिनिक. और कुछ इंटरवेंशन प्राइवेट साइड से? हाँ जी प्लीज, एग्जाम्पल्स. नहीं, प्राइवेट साइड से एंटरप्रेन्योरशिप लेड इनोवेशन कुछ अगर हुए हेल्थ केयर स्पेस में? सर ऑनलाइन कंसल्टेंसी शुरू हुई है, जहां पर रिमोट एरियाज भी में जो अगर कोई पेशेंट्स हैं तो ऑनलाइन कंसल्टेंसी में यूज कर सकते हैं. और कोई इंटरवेंशन? बट हैज इट
solve all the issues related to health and well-being of the individuals? No, still a lot of people die in remote areas, right? They don't have access to basic needs and facilities. क्या वहां पर काम कर सकते हैं? हम सब बड़े बड़े शहरों में आते हैं और हम किसकी बात करते हैं कि जॉब मिल जाएगा, रह लेंगे, सिटीज में पैसा बना लेंगे. बट वेयर डज द क्रक्स लाइज? नेक्स्ट आ जाओ. हाँ तो नेक्स्ट आ जाओ. नेक्स्ट आ जाओ. वेयर डज द क्रक्स लाइज? क्रक्स लाइज इन ऑल ऑफ यू थिंकिंग कि इनोवेशन सिर्फ बड़े शहरों की चीज नहीं है. आज की डेट में इंडिया में टियर 3, टियर 4 सिटीज में भी आपको इनोवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है. सो डोंट थिंक कि हम नोएडा में आ गए, दिल्ली एनसीआर में आ गए, लाइफ सेटल हो गई. नहीं, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, और एटलीस्ट somebody who is interested in real innovation, right? Go back to your small cities, tier 3, tier 4 cities में. वहां जाके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करिए and try working on them. If you are really passionate about entrepreneurship, right? And that will help in what? In creating solutions not just for your community, for your village, for your surrounding areas. Those models can be replicated across India, right? So innovation problems वहाँ के identify करिए and try to solve those issues. So what are the things which are helping in fostering innovation? First is education, which is very important. That's why all of you are sitting here, or you go to higher education institutions. R&D becomes a very critical. R&D plays a very critical role. Now R&D किस level पे? At the institution level, at the scientific research institutes, जो government aided है सारे. Third is pushing up the infrastructure, whether it's physical infrastructure or the डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. तो आज के डेट में इंडिया में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर काफी रोबस्ट है, बट स्टिल देयर इज लॉट मोर टू improve upon, right? So how can you utilize that infrastructure which is being built by the government to foster innovation? Fourth, entrepreneurship plays a key important role, and risk taking as well. Now, risk taking की हम बात क्यों कर रहे हैं? हेलो, entrepreneurship और risk taking की बात क्यों कर रहे हैं हम लोग? हाँ ठीक है. Why is it important? आज के डेट में can you take that risk? Can you take that risk of leaving something, leaving everything? आज के डेट में भाई मैं इंजीनियरिंग के साथ साथ इंजीनियरिंग कर रहे ना, इंजीनियरिंग के साथ साथ let me create something and go back to where. कहाँ से आते हो? हाँ, बिहार में कहाँ से? नवादा में अगर आप चले जाओ, हाँ, लोकल इश्यूज को अगर आप आइडेंटिफाई, कैन यू टेक दैट रिस्क? गो बैक टू नवादा, ट्राई टू आइडेंटिफाई और नेबरिंग एरियाज, वहां पर ट्राई टू आइडेंटिफाई रियल सोसाइटल प्रॉब्लम्स, रियल चैलेंजेस which people are facing there, and try to come up with innovative ideas. Will you be happy to take that risk? क्यों? पैसे है नहीं कि मैं सॉल्व कर सकता हूँ. पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, पैसे बहुत पैशन नहीं है. ठीक है, मैं बोल रहा हूँ पैशन अगर है तुम्हारे पास, कैन यू टेक दैट रिस्क? व्हाट आर द अदर फैक्टर्स विच विल नॉट अलाउ यू टू टेक दैट रिस्क? कैसे? खुल के बोलो एग्जाम्पल. आर यू डूइंग कंप्लीटिंग दिस एजुकेशन बाय टेकिंग अ लोन? तुमने लोन लिया हुआ पढ़ाई के लिए? नहीं लिया हुआ, राइट? तो एक्सपेक्टेशन क्या है पेरेंट्स साइड से? क्या एक्सपेक्टेशन? करेक्ट, राइट? सो इट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स, इट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट्स to inculcate the risk-taking abilities among students or kids from their childhood. हम डेवलप नेशन की बात कर रहे हैं ना, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सो अभी इफ आई आस्क, आई थिंक कितने 50-60 लोग यहाँ बैठे हैं स्टूडेंट्स में से, हार्डली 4 या 5 ऐसे निकलेंगे जो बोलेंगे हाँ मैं रिस्क ले सकता हूँ कि आई लीव एवरीथिंग एंड स्टार्ट समथिंग ऑफ देयर. हाउ मेनी ऑफ यू प्रेजेंट हियर आर रेडी टू लीव एवरीथिंग इन द सेंस इंजीनियरिंग के साथ साथ जॉब नहीं मत किसी को नहीं करना है. यू आर गाइज आर रेडी टू गो बैक टू योर नेटिव प्लेसेस, टेक स्टेप इनटू एंटरप्रेन्योरशिप. कितने लोग कर लो?
कितने लोग कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो, बताओ। फिर हम डेवलप नेशन की कैसे बात कर सकते हैं? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना अरे बहुत बेटी, रिस्क टेकिंग के लिए। राइट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लेवल, स्कूल लेवल, पेरेंट्स लेवल पे हमको बहुत सारा माइंडसेट का ग्रूमिंग की जरूरत है, जहां पर हम उनको इन सब चीजों के बारे में बताएं, राइट। बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, so let's talk about few facts and figures. इसके बाद I will open up for questions, जहां पर I would be happy to share more details. India's ranking in global innovation index जो होता है, हम लोग कहीं 80 पे और 90 पे हम लोग रेट करते थे few years back, but right now where are we standing at rank number 40, which is good. पहले से improve हुआ है, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं इस रैंकिंग के लिए, but is it good? ठीक है, लास्ट टाइम से अच्छा, but there is much more to be done. क्योंकि टॉप नेशंस जो है, जो डेवलप नेशंस है, वही है टॉप 1, 2, 3. सेकेंड, good, which are good things. Ranked third in scientific publication output. Patents filed 90,309 in 2023. Just imagine, China. हर धड़कन में चलने कुदरत ने है, दिलों को और करीब लिया। जब अंधेरा मुक्त हौसले रोशन जब तेरी यात्रा का एहसास दूर से हो जाए, जब चांद तारों को बुद्धि में समेटने की आजादी हो, ये मुमकिन है। हाँ, ये मुमकिन है, और ये कर दिखाना ही हमारा जुनून है। ये मुमकिन है। What does this small video talk about? What does this small video talks about? Simple innovation, right? क्या दिखाया उन्होंने? They touched upon few spheres in life, and everywhere innovation played a very important role, right? So it's possible. It's possible that we become a developed nation in next few years, 10, 15, 20 years. But I think energy should be a cumulative energy. हम सबकी एनर्जी सही तरीके से, सही राइट माइंडसेट से, सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की, गवर्नमेंट के सपोर्ट से, सब कुछ पुट इट इन द राइट डायरेक्शन, आइडेंटिफाई रियल इंडिजिनस प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, वर्क क्रिएटिवली, इनोवेटिवली, कम अप विद इंटरेस्टिंग आइडियाज, बिल्ड एंटरप्राइजेस। वही एक तरीका है, या तो एंटरप्राइज क्रिएट करो या इन्वेस्टर बन जाओ, उसी से ही वेल्थ जनरेट होगी, बिकॉज वेल्थ जनरेशन इज द की फैक्टर in any nation becoming a developed nation. Thank you very much. I'm open for questions.